Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. So let me see. Last time हम लोग कर रहे थे surface integral. So today let us do volume integral. Okay. अभी तक हम दो इंटीग्रल साइन सॉल्व कर रहे थे. Now let us do it for three integral sign. Okay. So evaluate. Let me take example of volume integrals. Okay, so evaluate this integral 0 to 2 pi, phi equal to, and then theta equal to 0 to pi by 4, let us say, and then r equal to 0 to a r square sin theta dr d theta d phi. Okay, ये जयप्रकाश चौधरी हमारी क्लास में नहीं है ना? शायद हर्षित हमारी क्लास में है. ओके. सो वॉल्यूम इंटीग्रल में भी हमें क्या करना होता है? जैसे हमें सरफेस इंटीग्रल में सॉल्व करना होता है, इन सिमिलर मैनर वी डू इट फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल. एंड वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल से इजी ही होते हैं. ओके, सो लेट अस डू इट. So here it is given to you phi equal to 0 to 2 pi, theta equal to 0 to pi by 4, r equal to 0 to a. So you can see from here कि ये तीनों constant limits हैं. Okay, so you can solve any one first and then any one second, no problem. Okay, but always start with this side. Okay, from right to left. So सबसे पहले हम किसका शुरू करेंगे? r का. ओके, सो सबसे पहले आर के लिए, देन थीटा के लिए, देन फाई के लिए. ओके, बट इसका ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते थे. आप इसको और भी किसी ऑर्डर में करेंगे तब भी रिजल्ट आपका सेम आएगा. ओके, सो लेट अस डू इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू इट फॉर आर. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू 0 to 2 पाई d phi थीटा इक्वल टू 0 to पाई बाई 4, एंड थीटा की अब कोई टर्म है साइन थीटा d theta, and then r 0 to a r square dr. And now it is very clear to you, you can do it yourself even. Okay, so do it for, first of all do it for r. तो ये क्या आ जाएगा आपका? phi equal to 0 to 2 pi, theta equal to 0 to pi by 4. Okay, d phi sin theta d theta, and first of all we solve it for r. So r cube by 3. Now you substitute limits. So r equal to 0 to a. So a cube by 3 आ गया. You can take it out because it's a constant. Okay, so you can write down a cube by 3. Okay, now do it for theta. So phi equal to 0 to 2 pi d phi, and do it for theta. So ये क्या आ गया? Cos theta. Okay, so minus cos theta, and now put limits. एक बार थोड़ा ऊपर कर दो मैम, एक बार क्वेश्चन देखना. Oh, so many people want to join. Hisham, Ankit, जयप्रकाश चौधरी. मैम शायद ये अपनी क्लास का बच्चा है शायद. अच्छा चलो, मैंने ज्वाइन करा लिया है. अरे हमारी क्लास का है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर्यन सिंह, जतिन, आशुतोष. Okay, so now substitute limits. So theta equal to 0 to pi by 4.
So if you substitute these limits, theta equal to 0 to pi by 4, then minus cos pi by 4 plus cos 0. So this is minus 1 by root 2, okay, plus 1. So this thing equal to, this thing is again constant. So you can take it out. So this is 1 minus 1 over root 2. ये इस वाले से आ गया. Now only one term is left. So phi equal to 0 to 2 pi d phi. Now do it for phi and then again you get a constant. So a cube by 3 and then 1 minus 1 over root 2 and then do it for phi. So this is phi and put limits. So 0 to 2 pi. So finally you get this is equal to 2 pi a cube by 3 1 minus 1 over root 2. Okay. So you can see from here कि जैसे हम बिल्कुल सरफेस इंटीग्रल के लिए करते थे एग्जैक्टली सेम मैनर में यहाँ करना है. okay? यहाँ उससे इजी ही पड़ता है बिकॉज यहाँ लिमिट्स हमें लेना कई बार इजी पड़ जाता है और वहाँ थोड़ा सा लिमिट्स लेने में कई बार परेशानी होती थी. राइट. सो दिस इज वन एग्जाम्पल. लेट अस डू नेक्स्ट एग्जाम्पल. Evaluate triple integral s xyz dx d by dz, okay, where s is given to you, surface is given to you, where s is equal to x by z such that x square plus y square plus z square is less than equal to 1, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 and z is greater than equal to 0. Okay. So you can see from here कि यहाँ हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में. We want to evaluate this triple integral, okay, where surface is given to us and surface क्या है ये? This is a surface of a sphere. यहाँ पर equation हमें दी है x square plus y square plus z square is less than equal to 1. So it is a equation of a surface, equation of a sphere, okay, with radius 1 और यहाँ पर lower limit हर एक की दी हुई है. X is 0, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0. So इसकी लिमिट्स हम किस तरह से लिखेंगे? Okay, यहाँ पर S is a sphere, okay, and x, y, z are all positive. Okay, so we have to consider only positive octant. और यहाँ पर लिमिट आ जाएंगी. We first of all we write down it like this. Let me take next color. Solution. So triple integral x y z dx d by dz, this is equal to, मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ. okay, so I write down here x, y and z. okay, अब z की हमें सबसे पहले z की लिमिट लिखनी है. so z इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है and z इक्वल टू 0 टू एक ये हमें दिया हुआ है. तो ये क्या आ जाएगी? z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, नाउ जब z की लिमिट लिख दी, नाउ यू फॉरगेट अबाउट z. तो हमारी ये इक्वेशन क्या बची? यहाँ पर हम z के लिए लिख चुके. नाउ आवर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. नाउ वी वांट टू राइट डाउन इट फॉर y की लिमिट्स हमें कैसे लिखनी है? लोअर लिमिट दी हुई है. अपर लिमिट हमें कैसे लिखनी है? नाउ योर सरफेस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. सो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब x की लिमिट कैसे लिखनी है? फॉरगेट अबाउट y एंड z. लुक एट ओनली x. x की लोअर लिमिट हमें दी हुई है. सो x इक्वल टू 0 एंड अपर लिमिट क्या आ जाएगी? 1. Okay, so this is your limits.
dx dy dz। तो यहाँ इवन फिगर देखने की भी हमें जरूरत नहीं है। ओके यहाँ हमें दिया हुआ है, सो x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, z इज पॉजिटिव, मीन्स सारी चीजें पॉजिटिव ऑक्टेंट में है। ओके एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। दिस मीन्स इट इज अ सरफेस ऑफ ए स्फीयर ओके विथ रेडियस 1 ओके और लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है, सो दिस इज 1 ओके। सो और लिमिट्स हमें कैसे लेनी है फिर से सुन लो कि सबसे पहले हमने लिख लिया x बाई जेड ओके, इस ऑर्डर में लिख लिया, तुम किसी ऑर्डर में लिख सकते हो नो प्रॉब्लम ओके, बट जिस भी ऑर्डर में आप लिखो उसमें सबसे पहले आप जिसकी भी लिमिट देख रहे हो सबसे पहले फर्स्ट इसकी देखोगे जो यहाँ पर है ओके। तो यहाँ पर मैंने जैसे फॉर ए जेड के लिए लिखा है ओके, तो जेड इक्वल टू 0 टू दिस थिंग ओके 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर you forget about z, look at only x and y. Now you are looking at x and y, so y equal to 0, यहाँ पर लोअर लिमिट हमें पता है, अपर लिमिट कैसे आ जाएगी, y equal to x square plus y square equal to 1, so therefore y equal to square root of 1 minus x square। and similarly x के लिए हम क्या करेंगे, we forget about y and z, we look at only x, so x square equal to 1 and therefore यहाँ पर लोअर लिमिट हमारी डिफाइंड है x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 ओके। एंड नाउ वंस यू राइट डाउन दिस देन इट इज इजियर टू सॉल्व। जैसे हम और क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं वैसे ही क्वेश्चन में जैसे सरफेस इंटीग्रल करते हैं बिल्कुल सेम मैनर में करते चले जाओ। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो इफ यू लाइक ओके, x इक्वल टू 0 टू 1 x dx और क्या है y इक्वल टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square by d by and z equal to 0 to z equal to square root of 1 minus x square minus y square (1 minus x square minus y square z dz। नाउ सॉल्व इट फर्स्ट फॉर जेड। अब यहाँ वेरिएबल लिमिट है, वंस लिमिट तुमने डिफाइन कर दी, अब यहाँ पर अब आपको ऑर्डर नहीं चेंज करना है ओके। अब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे, जेड के लिए, एंड देन फिर बाई के लिए, एंड देन फिर एक्स के लिए। सो डू इट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू इट फॉर जेड ओके। सो एक्स इक्वल टू 0 टू 1 एक्स डी एक्स, ये तो एज इट इज आ जाएगा, बाई इक्वल टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर by dy okay, these things are now constant for us okay for z। so z का अब हम z को इंटीग्रेट करेंगे, so this is z square by 2 and now we substitute limits। limits क्या है हमारी 0 to square root of 1 minus x square minus y square। so now substitute limits, so ये क्या आ गई आपके लिमिट्स 1 minus x square minus y square okay by 2 okay, lower limit is 0, so this thing equal to x equal to 0 to 1 x dx and y equal to 0 to square root of 1 minus x square। और यहाँ से क्या आ जाएगा, from this is equal to 1 minus x square minus y square and हमारा y यहाँ पर था इस ये वाला okay, so y and dy right, and now do it for y। so y के लिए हम कैसे करेंगे, do it for y। so y के लिए करने के लिए you just multiply by inside and then integrate it, so this thing equal to ये क्या आ गया x equal to 0 to 1 x dx and यहाँ से ये कर लो y equal to 0 to square root of 1 minus x square and इसको y को मल्टीप्लाई कर लिया, so y by 2 minus x square by 2 minus y cube by 2 okay, It's 2 o'clock. and now you integrate it okay for y। so ये क्या आ गया हमारा, this thing equal to then इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to 1 ओ इधर x लिखना था, आई एम सॉरी okay, so x dx and now do it for this, so y square by 4
minus x square by 4 minus y to the power 4 by 4. So this is 8 and now put limits. So limits substitute कर दो, y equal to 0 to square root of 1 minus x square. Okay, so now substitute limits and then just solve it like any other integral. Okay, solve it. क्या आ गया बताओ तुम लोग. Okay, so this is x equal to 0 to 1 x dx and यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 minus x square by 4 minus x square 1 minus x square by 4 minus 1 minus x square whole square by 8, right? And now again solve it up. You can see from here कि यहाँ पर सिर्फ x की टर्म बची है, so you can do it for x. तो ये टर्म आप ओपन करो और सॉल्व करो. कर लोगे कि नहीं अब? Good, then do it. I am going to write its answer. Okay, so now it's a simple integral. You can just solve it and you can do it. Okay, now let me take this next example. This says if vector f is given to you, let us say ये दिया हुआ है हमें 2x square minus 3z I minus 2x by j minus 4xk, then calculate integral v delta dot f dv. Okay, where b is the closed region, where v is the closed region bounded by the planes x equal to 0. x equal to 0 का मतलब कौन सा प्लेन हुआ? x 0 कहाँ होगा? yz प्लेन पर, right? So x equal to 0, y equal to 0 means it is xz plane, z equal to 0 means it's xy plane, right? And 2x plus 2y plus z equal to 4. ओके, सो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें वेक्टर दिया हुआ है एंड हमें वॉल्यूम दिया हुआ है वेयर v इज द क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स दिस. okay, x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and 2x plus 2y plus z equal to 4. तो हमें 4 प्लेन्स दिए हुए हैं. ओके, x equal to 0 क्या हुआ? देखो, इफ दिस इज x एक्सिस, यहाँ पर ये y एक्सिस है सपोज, और ऐसे लेट मी टेक. ओके, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस. तो ये प्लेन कौन सा होता है हमारा? दिस प्लेन इज xy प्लेन. ओके, यहाँ पर हम आपकी z एक्सिस है. ओके, सो दिस इज xy प्लेन एट z इक्वल टू 0, राइट? अब ऊपर चलो, इफ यू टेक z इक्वल टू 1 तो क्या होगा? इट इज अगेन xy प्लेन but at z equal to 1, right? If you take z equal to 2, then it is xy plane at z equal to 2. So यहाँ पर सिमिलर मैनर में, यहाँ पर if z equal to 0, it is xy plane. So यहाँ पर 3 प्लेन दिए हुए हैं. okay? 3 प्लेन है हमारे. जैसे एक कोई भी रूम है, अगर चौकोर रूम है, उसकी एक कोना पकड़ लो. ओके, तो इस तरह का हमारे 3 प्लेन से और ढका हुआ है ना, 3 प्लेन है हमारे तरफ हमारा, राइट? एंड ये सरफेस किस तरह की दी हुई है? स्लेंटेड सरफेस है.
जो कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 2 पर, बाई एक्सिस को कहाँ कर रही है, 2 पर, एंड जेड एक्सिस को 4 पर, 4 पर। राइट। ऐसे ही निकालते हैं ना, ये इस तरह की है। लेकिन हमें ज्यादा कुछ देखने की इसमें जरूरत नहीं है, बट ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया था, इसलिए मैं आपको बता दिया। सो दिस इज 0 फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अच्छा, एक्स बाई जेड एक्सिस जो भी जब भी आप ले रहे हो तो हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने अगर एक्स लिया है तो यहाँ बाई होगा, यहाँ जेड होगा। अगर मैं बाई की जगह एक्स ले रही होती तो यहाँ एक्स होता, यहाँ जेड की जगह बाई होता और एक्स की जगह जेड होता। हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में ही लेने हैं। ओके, सो ये तो यहाँ का वो रीजन है। एंड नाउ हमें प्लेन दिए हुए हैं, तो ये हमारा हुआ एक्स बाई प्लेन, ये हमारा क्या हुआ, दिस इज बाई जेड प्लेन, एंड ये प्लेन कौन सा हुआ हमारा, एक्स जेड प्लेन। ओके, एंड अब हमें एक प्लेन और दिया हुआ है, वो प्लेन कौन सा है, जो एक्स एक्सिस को 2 पर कट कर रहा है, बाई एक्सिस को भी 2 पर कट कर रहा है, एंड जेड एक्सिस को 4 पर कट कर रहा है। सो इस तरह का प्लेन है। ओके, इस तरह का प्लेन है, राइट। सो दीवार का एक कोना है, वहां से तुमने स्लेंटेड कोई चीज रख दी, इस तरह का प्लेन है ये। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व इट। सो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, वी वांट टू फाइंड आउट वॉल्यूम इंटीग्रल। अच्छा, यहाँ पर एक इंटीग्रल साइन दिया हुआ है लेकिन नीचे वी लिखा है। ओके, एक इंटीग्रल साइन दिया हुआ है लेकिन वी लिखा है एंड डी वी लिखा है, दिस मीन्स कि हाँ ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। ओके, ऑलवेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें ये सॉल्व करना है, डेल्टा डॉट एफ। सो डेल्टा डॉट एफ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन। सो डेल्टा डॉट एफ क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा डॉट एफ, it's a dot product. So delta we know it is a operator del, so I u del over del x plus j del over del y plus k del over del z, and dot product है, so there is no problem. And f क्या है हमें दिया हुआ है, f, I am not going to write down whole expression for f, just write down expression for f and now take dot product. So ये dot product लेने पर हमारा क्या आ जाएगा, del over del x, डेल ओवर डेल एक्स, एंड इसका आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 3z, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3z एंड प्लस j डेल ओवर डेल बाई, एंड ये क्या है हमारा माइनस 2x बाई प्लस k डेल ओवर डेल z, दिस इज माइनस 4x। ओके, so therefore this thing equal to, this is partial differentiation with respect to x, so this is 4x, with respect to z is 0, and यहाँ पर it is with respect to y, so x is treated like a constant, so this is minus 2x, so 4x minus 2x, and this is equal to 2x. so delta dot x तो हमारा आ गया, right? Now sorry, delta dot f हमारा आ गया। Now we want to take limits to find out this volume integral. तो हमें लिमिट कैसे निकालनी है, इंटीग्रल, now we want to write down integral v delta dot f dv, which is equal to ट्रिपल इंटीग्रल डेल्टा डॉट एफ, ओके, एंड dv क्या आ जाएगा यहाँ पर, it's a volume element, so volume element is d by dx dy dz, right? And now we want to take limits, so take limits. Limits हमारी क्या आ जाएंगी, limits are, again write down x, y and z. Okay, so z की सबसे पहले हमें लिमिट लेनी है, and then for y and then for x. सो जेड की यहाँ पर हमारे हमें दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमें लोअर लिमिट सबकी पता है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। सो z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 2x माइनस
2 by. Now you forget about z. Ab write down for y. So this is 2x plus 2y equal to 4. So x plus y equal to 2. Okay. So therefore y equal to 0 to y equal to 2 minus x, right? एंड अब बचा हमारे पास x. सो x की लिमिट क्या आ गई? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2. ओके. एंड दिस इज डेल्टा डॉट f. उसका वैल्यू लिख सकते हो. सो राइट डाउन वैल्यू ऑफ डेल्टा डॉट f एंड देन dx dy dz, राइट? सो डेल्टा डॉट f की वैल्यू हमें पता है. डेल्टा डॉट f की वैल्यू is 2x. So it's a simple integral and you can even do it yourself. So this is 2x okay. Now again solve it for z first and then for y and then for x. So let us do it. Okay. So x की टर्म यहाँ पर है हमारे पास and 2. So 2 यहाँ पर we can take it out and we can write x dx. x equal to 0 to 2. बर्डन की चौथी है पार्टी कब दे रहा है तू? y equal to 0 to. तेरी वजह से तो मैं क्लास में आया हूँ. क्या बनाया तूने सर? मैम ही मेरे नाम से कोई घुस गया है. हम लीव कर दिया उसने. तो ये फिर से एंटर करेगा तो फिर से उसमें ज्वाइन करने के लिए पूछेगा कि वैसे ही ज्वाइन हो जाएगा विदाउट? सीधा ज्वाइन हो जाएगा. हैं? मैम ऑटोमेटिक आपने एक बार परमिशन दे दी ना उसको, वो अपने आप हो जाएगा. अच्छा. आप इसको ब्लॉक कर देना मैम. अच्छा. अमन पटेल करके है ना ये वाला? अमन पटेल नहीं सर मैम. अनमोल जैन. अनमोल उसकी जैन. प्रोफाइल पिक्चर नहीं होगी. अनमोल लिखा है जैन. उस पे. एक तो अनमोल, ये तो रियल अपनी क्लास का स्टूडेंट है. हाँ. इस पे प्रोफाइल है और उस अच्छा, पे ये अच्छा. लिखा ओनली. अच्छा. हम एक बार उसे किक कर दोगे तो फिर वो खुद ज्वाइन नहीं कर पाएगा. और नाम से आईडी बना लेते हैं ना, ये दूसरों के नाम से आईडी बना लेते हैं इस तरह के लोग. ये प्रॉब्लम है इनकी. मैं यही देख रही हूँ कि कहाँ से करते हैं इसको. मैम आप क्लासरूम पे बना लो ना लिंक पे. हम्म. मैम क्लासरूम पे बना लो आप लिंक. फिर वहाँ से कॉपी भी नहीं होगा और कोई शेयर भी नहीं कर पाएगा. हमारी जो जे की क्लास है वो ऐसी होती है. मतलब कैसे क्लासरूम पे मतलब भेज दिया करूँ मैं? नहीं, वहाँ पे मैम आपको एक पर्टिकुलर लिंक सेट करना होगा. मतलब उसमें हम जो मतलब आपके क्लास के स्टूडेंट है उन सबको मतलब सिर्फ वही ज्वाइन कर पाएंगे. अच्छा. और वहाँ से ना हाँ जिनकी ईमेल होगी और उस लिंक को कोई कॉपी भी नहीं कर सकता और ना ही शेयर कर सकता है. अच्छा. परमानेंट लिंक हो जाएगा. परमानेंट हो जाएगा. आपको डेली सेंड भी नहीं करना पड़ेगा. अच्छा. तो वो फिर सेफ है मैम. अच्छा देखूंगी. अभी मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ उसमें. देखती हूँ. तो अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा इसका कहाँ से है. ये इसको रिमूव तो इसको रिमूव कहाँ से करते हैं इसको? मैं ये देख रही हूँ. होस्ट कंट्रोल. एनीवे अगर ये फिर से होगा तो देन व्हाट वी विल डू, हम इसको बंद करके फिर से हम रीजॉइन कर लेंगे. ठीक है ना? ओके. ओके मैम ये वैसे हर क्लास में हो रहा है ऑलमोस्ट. अच्छा. वो इसका मतलब किसी ने फेक आईडी बना रखी है ना, वो ये इसी के लिए ही करता रहता है ना वो. मैम आपने वैसे जब एडमिट करे थे ना आपने इसको परमिशन दी तब आपने नाम बोला था. मैंने एक बार मतलब बोलने हुआ फिर आपने दे ही दी परमिशन. तो मैंने सोचा शायद रियल स्टूडेंट. अच्छा मैं अमन देख के वो दे दी ना मैंने तो. हाँ मेरे को तभी पता चल गया था ये फेक आईडी है. अच्छा. वही चक्कर है ना. ये क्या कर सकते हो. आपकी अगर आएगा तो अगर पॉसिबल होगा तो उसको कर देंगे.
ओके, सो बाई इक्वल टू 0 टू बाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एम बाई की टर्म तो अब यहाँ है नहीं कोई, सो डी बाई, ओके। देन फिर जेड, सो अब जेड के लिए भी सॉल्व इट, सो जेड आ गया ये आपका, ओके, बिकॉज इंटीग्रल डी जेड है ओनली, सो जेड, सो हमने जेड के लिए सॉल्व किया। नाउ वी सब्स्टिट्यूट लिमिट्स, सो लिमिट्स आर 4 माइनस 2x माइनस 2 बाई, ओके। सो नाउ अगेन सॉल्व इट, सो ये क्या आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू 2, ओके, एंड ये हमारा x dx एज इट इज आ गया, एंड देन बाई इक्वल टू 0 टू 2 माइनस एक्स डी बाई एंड जेड, सो जेड से हमारा क्या आ गया ये 4 माइनस 2x माइनस 2 बाई, एंड लोअर लिमिट हमारी 0 है, ओके। नाउ वी सॉल्व इट फॉर बाई, सो इंटीग्रेट इट फॉर बाई एंड देन फॉर x, so can you do it yourself now, do it, so Yeah. this करो, क्या आया बताओ। अब तो बहुत इजी सा इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल ही बन गया अब तो वो। मैम थोड़ा ऊपर कर दीजिए, क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाला, ओके मैम। ओके गुड। केवल इसमें यही है, पेशेंस के साथ करते चले जाना है, और कुछ नहीं है ट्रिपल इंटीग्रल में। मैम आंसर क्या है इसका? आंसर पहले आप निकालिए फिर बताती हूँ। 8/3 है मैम। बता दो। 8/3 है। 8/3, 8/3, ओके। आंसर इज 8/3। So how many of you have done it? मैम अर्षित, Please write down in chat box if you have done it. Okay, so I believe most of you have done it. Okay, so now I take next example. Next example is, let vector f is equal to 2xzi minus xj plus y square k, then evaluate volume integral f dv, where V is the region, bounded by the surfaces अरे मानस साहब ले लो पुदीना। अबे कौन है मैम ये? मैम किक आउट कर दो जल्दी। मैम इसको जल्दी किक आउट कर दो ना, फिर ये कर जो दिया, निकलेगा। ये कर दिया मैंने। मैम ये शेयर कौन कर रहा है वैसे? मैम आप क्लासरूम पे बना लेना मैम आज। हाँ आई थिंक कोई अभी मीटिंग में उसी ने ज्वाइन किया है हाँ, किसी और मैम दूसरे आज है ना, आप है ना वो कर देना, वो क्लासरूम पे लिंक शेयर कर देना आज या फिर में कैसे भी। क्लासरूम में ये दिक्कत नहीं होती। अच्छा, क्लासरूम में माने ईमेल से करते हैं, उसमें कैसे करते हैं?
आई विल सी टू इट कि ईमेल से है किससे है वो क्लासरूम में. ओके ईमेल से होता है मैम वो. ईमेल से. ईमेल से ठीक है तो देखती हूँ मैं. ओके ये अनमोल जैन जो है जिसमें फोटो लगा हुआ है वो हमारी क्लास का है राइट. यस मैम. अभी अभी तो मुझे लगता है मैंने उसे हटा दिया. आ गया मैम वापस. हाँ आई एम सॉरी अनमोल पर तुम वो जो जिसने फेक आईडी तुम्हारी बना रखी है ना उसके चक्कर में मैंने तुम्हें हटा दिया था. region bounded by the surfaces x equal to 0, y equal to 0, to y equal to 6 and z equal to x square to z equal to 4. ओके सो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है. हमें यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है और हमें यहाँ पर लिमिट्स भी कुछ दी हुई हैं. सो यहाँ पर यू कैन सी फ्रॉम हियर कि विदाउट लुकिंग एट इट इवन यू कैन पुट लिमिट्स. ओके इवन विदाउट लुकिंग एट द फिगर यू कैन मेक आउट कि लिमिट्स क्या होंगी. ओके सो लेट अस डू इट. ये किस तरह का है वैसे. जैसे ये इस तरह का है x by x, let us say this is by and suppose this is your z. okay so x by z ये ओरिजिन है. ओके तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 6 तो दिया हुआ है. सो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 6 है यहाँ पर. ओके और क्या दिया हुआ है हमें x इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है. सो x इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है और z इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू z इक्वल टू 4. तो z इक्वल टू 4 भी दिया हुआ है एंड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मीन्स कि z की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू हैं. सो ये इस तरह का फिगर है कुछ कुछ. ये बुक में 3 डायमेंशन में दिया हुआ है. यू कैन लुक एट इट. ओके बट फॉर मी इफ आई डोंट लुक एट द फिगर देन ऑल्सो आई कैन मेक आउट कि इसकी लिमिट्स क्या होंगी. सो लेट अस डू इट. सो ये क्या है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल f dv. ओके एंड वेयर f इज गिवन टू यू. नाउ लेट अस राइट डाउन लिमिट्स. तो लिमिट्स हम कैसे लेंगे. लिमिट्स आर like this. Okay so write down again x, y and z. so first of all let us write down the limits for z. तो z की लिमिट हमें दी हुई है x स्क्वायर टू z इक्वल टू 4. सो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू z इक्वल टू 4. ओके और क्या दिया हुआ है हमें y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 6 भी हमें दिया हुआ है. अब क्या बचा हमारे पास x. सो x इक्वल टू 0 भी हमें दिया हुआ है एंड यहाँ पर हमारा यू कैन लुक एट दिस z इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू z इक्वल टू 4. सो इफ यू पुट z इक्वल टू 4 देन यू कैन मेक आउट के x इक्वल टू 2. ओके ये प्लस माइनस 2 है लेकिन प्लस माइनस 2 हमें लेना ही नहीं है बिकॉज हमारी लोअर लिमिट हमारी पहले से सेट है. सो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2. ओके सो हमारी तीनों लिमिट्स हो गई एंड यू कैन सॉल्व नाउ. सो अब हमें यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किए थे वहां पर हमारा क्या था स्केलर फंक्शन था. स्केलर आ गया था बाद में लेकिन यहाँ पर हमारा वेक्टर फंक्शन है. सो डू इट फॉर वेक्टर. सो वेक्टर के लिए ये z इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू z इक्वल टू 4 यहाँ पर दिया हुआ है ना. सो इफ यू पुट z इक्वल टू 4 तो ये क्या आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया राइट. प्लस माइनस 2 आया है लेकिन लोअर लिमिट हमें पता है x की x इक्वल टू 0. सो हमारी माइनस तो होगी नहीं हम प्लस ही लेंगे. सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 टू 2. ओके सो देयरफॉर अब यहाँ पर f हमारा वेक्टर है. सो लेट अस राइट डाउन वेक्टर f. अगर हमें यहाँ x इक्वल टू 0 नहीं पता होता तो हम इसकी लोअर लिमिट x इक्वल तब टू हम -2 ही लेते.
तब हम -2 + 2 लेते हैं, ओके मैम। अगर हमें नहीं पता होती तब, लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो, इसलिए। ओके, सो लेट अस डू इट फॉर दिस। अब हमारा ये क्या आ गया, 2xzi माइनस xj प्लस y² k, ये है हमारा f, एंड दिस इज dx dy and dz. Volume element is dx dy dz, and now we solve it. So let us do it. तो ये क्या आ गया आपका, okay? So x equal to 0 to 2, and यहाँ पर हम लिख देते हैं, okay? First, so 2xzi, or let me write down it in 3 terms, then it's better. So we break it into 3 terms. ये हमारी 3 टर्म है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो हम इसको 3 इंटीग्रल में लिख सकते हैं. सो राइट डाउन इट इन 3 इंटीग्रल and then solve these integrals one by one. Okay, first solve first, then second, then third. It is up to you. Okay, so let us do it. So let us break it. So I write down these 3 integrals: 2xzi minus xj प्लस बाई, ओ आई एम सॉरी, कर क्या रही हूँ मैं, ये दिमाग थोड़ा सा इधर से उधर करवा देते हैं ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना. ओके, सो 2xz, i को मैं बाहर भी लिख सकती हूँ, i, ओके, एंड माइनस j, और क्या आ गया आपका, x dx dy dz प्लस k, एंड ये क्या है हमारा, y² dx dy dz. सो तुम्हारे पास ये 3 इंटीग्रल आ गए. ओके, सो ये 3 इंटीग्रल हमें अलग अलग सॉल्व करके भी हम लिख सकते हैं या साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं. इट इज अप टू यू. ओके, बट यूजुअली I make my life simple, and to make my life simple, what I do, I solve in parts. So let us solve it in parts. So let us take this first term. Okay, so first term हमारी क्या है, first term. Okay, first term is I, x equal to क्या था हमारा, 0 to 2, y equal to 0 to 6, z equal to x² to 4, और अब आ गया हमारा 2xz. so 2xz, so 2x I can write here, 2x dx dy, and यहाँ पर क्या है हमारा, z dz. is that right? ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं. मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म लिखी. फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, ये ith टर्म. ओके, सो ith टर्म हमारी है i इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to 2, 2x है यहाँ पर, तो मैंने x की टर्म ये लिख दी है. देन y की हमारे पास टर्म नहीं है, दिस मीन्स y इज 1, सो y को मैंने एज इट इज लिख दिया. ओके, dy, एंड z का हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज z, सो z dz. ओके, एंड नाउ यू सॉल्व इट. सो ये क्या आ गया, ये I x equal to 0 to 2, 2x dx, and now solve it for z, y equal to 0 to 6, and z से क्या आ गया, ये z² by 2, and put limits now. limits क्या है हमारी, z equal to x² to z equal to 4. okay, so this is 16 by 2, so this is equal to I integral x equal to 0 to 2, 2x dx, and y equal to 0 to 6 d by
एंड पुट लिमिट्स फॉर जेड। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 16/2 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल टू एक्स स्क्वायर टू द पावर 2, so x to the power 4/2, right? Is that right? And now solve it for y. Okay, so we solve it for y now. So y के लिए क्या आ जाएगा हमारा, ये तो x की टर्म है तो ये तो सारा कांस्टेंट ही है यहाँ पर, so no problem. So this is equal to I x equal to 0 to 2 and 2x dx, एंड ये टर्म भी हमारी x की है, बट यहाँ पर हम अब हमारा क्या आ जाएगा, एंड बाई का अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बाई के लिए क्या आ जाएगा, ये बाई इंटीग्रल डी बाई इज बाई, एंड नाउ यू सब्स्टिट्यूट लिमिट्स। तो लिमिट्स क्या है हमारी बाई की 0 to 6, तो यहाँ से 6 आ गया हमारा, राइट? एंड नाउ ओनली टर्म्स ऑफ x आर लेफ्ट। ओके, सो x की टर्म सिर्फ रह गई है एंड यू कैन सॉल्व इट। Okay, so this is I, okay, x equal to 0 to 2 and 2 भी यहाँ से बाहर ले सकते हो 1/2, so ये 2 कैंसिल हो जाएगा, and then this is 16x minus x to the power 5, और यहाँ से क्या आ गया हमारा 6, right? And dx, and now only terms for x are left, so do it for x now. Okay, so x का क्या आ गया, ये 16, this is equal to I, अब x के लिए करो तो ये आ गया 6 into 16 into x square by 2, और यहाँ पर आ गया minus 6 x to the power 6/6. Okay, and now you substitute limits, so x equal to 0 to 2, 6 से 6 कैंसिल हो गया, and ये, so write down, substitute limits and then write down, क्या आ गया बताओ, एंड ये I एज इट इज आता जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 128 I. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि जहां पर I रखा हुआ है वहां पर I और चलता रहता है। ओके, सो नाउ डू इट फॉर द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म तो और इजी है, सेकेंड टर्म हमारी क्या है, दिस इज फॉर फर्स्ट टर्म, तो मैं इसको कुछ नाम दे देती हूँ, लेट अस से कैपिटल A। नाउ डू इट फॉर द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारी क्या है, सेकेंड टर्म है x इक्वल टू 0 to 2, y equal to 0 to 6 and z equal to 0 to 4, z equal to x square to 4 x. so x को मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ x dx, this is dy and dz की हमारे पास कुछ है नहीं, एंड यहाँ पर j का j ही लिख देती हूँ मैं सेकेंड टर्म में। ओके, एंड यहाँ पर ये माइनस साइन भी है, दिस इज होल टर्म, दिस वन minus j integral of this thing, so minus j and this whole thing dz, is that right? now solve it for j. okay, so j के लिए solve कर लो, तो ये क्या आ जाएगी, first of all do it for, so this is minus j, तो as it is चलता रहेगा हर एक में, so x equal to 0 to 2 x dx and y equal to 0 to 6, okay, डी बाई एंड जेड हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आ गया जेड एंड लिमिट्स आर एक्स स्क्वायर टू 4, सो जेड की लिमिट लगा दो, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू जेड इक्वल टू 4, सो नाउ दिस थिंग इक्वल टू माइनस जे एक्स इक्वल टू 0 to 2 एक्स डी एक्स, एंड यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4 माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ये आई एम सॉरी एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स डी एक्स एंड देन बाई इक्वल टू 0 to 6, एंड यहाँ पर लिमिट से हमारा आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
ओके ये x की टर्म है, सो ये इसमें लिख सकते हैं हम, सो दिस इज इक्वल टू माइनस जे एंड ये आ गया x इक्वल टू 0 to 2 x 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड नाउ यू इंटीग्रेट बाई, सो बाई को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया, अच्छा सो दिस इज बाई एंड यहां से आ गया 0 to 6, राइट, एंड नाउ फ्रॉम हियर यू गेट 6, सो माइनस जे तो एज इट इज चल रहा है, x इक्वल टू 0 to 2 एंड यहाँ से हमारा 6 आ गया एंड दिस इज 4x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स एंड नाउ इंटीग्रेट इट, सो इंटीग्रेट करो इसको तो क्या आ गया ये, दिस इज माइनस जे एंड नाउ 6 into 4 into x square by 2 minus x to the power 4 by 4 and now substitute limits in x, so x equal to 0 to 2, बताओ क्या आया, -24 minus 24j. So this is how we do it. Now do it similarly for the third term. So third term का भी कर दो, क्या आ रहा है बताओ, can you do it now for the third term? थर्ड टर्म हमारी क्या थी, इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to 2 y इक्वल टू 0 to 6 z इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू 4 और क्या था यहाँ पर हमारा बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर को मैं बाई में लिख देती हूँ, बाई स्क्वायर डी वाई एंड x की कोई टर्म है नहीं यहाँ पर तो डी एक्स यहाँ आ गया एंड z की भी कोई टर्म नहीं है, सो डी जेड आई कैन राइट हियर. Okay, now solve it. How many of you can solve it? Would you like to solve it? यस मैम. Okay, करो Yes, ma'am. करो फटाफट बताओ मुझे. So k I can write here. K integral x equal to 0 to 2 dx but 384k हाँ क्या आया फिर से बोलो. 384 k का. हाँ 384k किया है अपने हाथ से यस मैम. पक्का. जी मैम 384 ही है. पहले से कर रहा था मैम. अच्छा पहले से कर रहे थे आप, ठीक है. ये so by square dy and then for first of all for z and then for, so I think you can do it, so I can write down answer. क्या आ गया था 384k and now add all these three terms, so all these terms they give rise to ये क्या है टर्म हमारी एफ डी बी, दिस इज इक्वल टू देयर फोर क्या क्या आ गया था हमारा 128 आई और माइनस हाँ कैप 24 k कैप प्लस 24 जे 384 k कैप प्लस जी कैप 384 k कैप. okay, so this is how we do volume integral. अच्छा एक क्वेश्चन और मैं कराना चाहती हूँ, टाइम हो गया क्या? Yes. Should I do it? Can we do one more example? Okay. मैम 9:30 बजे लगे थे मैम. 5 घंटे हो गए. 5 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू हो गए मैम. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम. ओके सो नेक्स्ट थैंक यू टाइम. मैम. Okay, bye. Write down your attendance and then so we meet tomorrow again. Okay, till then bye bye. बाय मैम.
बाय।